Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's start numericals of Ohm's law and resistance. So बच्चे class 10th chapter number 12 ਦੇ ਅਸੀਂ numericals ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. So important numerical ਆ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ easy numericals ਆ. ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ practice ਕਰੋਗੇ numericals ਦੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ clearly ਸਮਝ ਲੱਗਣਗੇ. So let's start with the numerical number 1 ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਦੀ book ਵਿੱਚ given ਹੈ. So ਅਸੀਂ NCERT ਦੀ book ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ question ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ. How much current will an electric bulb drawn from 220 volt source? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ 220 ਬੱਲਬ ਵੋਲਟ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਗਿਵਨ ਆ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਗਿਵਨ ਆ 220 ਵੋਲਟ। ਇਫ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਬੱਲਬ filament is 1200 ohm, so ਸਾਨੂੰ resistance given ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ R given ਆ 1200 ohm। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ given ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ how much current ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ I ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ohms law ਪਤਾ, ohms law ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ V is equals to IR, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ I ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, R ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, V divided by R। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, I is equals to V divided by R। क्लियर हो गया। V बच्चे सानू कितना गिवन है 220 और रेजिस्टेंस कितनी गिवन है 1200। एक जीरो नाल एक जीरो कटी गई, दैन 2 दी टेबल ते कट दो, सो आ गया 11 डिवाइडेड बाय 60। हुण बच्चे 11 डिवाइडेड बाय 60 नूं तुसीं डिवाइड करके देख लो, तुहाडा आंसर आ जाएगा 0.183 एम्पेयर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। सो ये तुहाडे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। हुण बी पार्ट देखो बच्चे, बी पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ, how much current will an electrical heater coil drawn from 220 volt, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ ਸਾਨੂੰ voltage given ਆ 220 volt source if the resistance of the coil is 100 ohm, R ਕਿੰਨਾ given ਆ ਸਾਨੂੰ 100 ohm। ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ how much current, again we have to find I, so what is the formula of I, V divided by R। again V ਦੀ value ਲਿਖੋ ਬੱਚੇ 220 divided by 100, 0 ਨਾਲ 0 कैंसिल, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਦੋ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ 11 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, so we get 2.20 एम्पेयर। क्लियर हो गया, सो ये साडा आंसर आ गया। उन्होंने दोनों केसिस दे विच ए और बी पार्ट दे विच दोनों विच उन्होंने करंट फाइंड आउट करन लई किहा सी, असीं दोनों ए और बी सॉल्व कीते और असीं करंट दी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या आया, the potential difference between the terminals of the electrical heater is 60 volt। सब तो पहला बच्चे ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਵੋਲਟੇਜ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ V is equals to 60 volt। when it draws a current of 4 ampere, so current कितना draw होया 4 ampere from a source, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ, what current। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ I ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ 120 ਵੋਲਟ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਓਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ V ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ IR ਦੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, I ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ V ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ V ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਪਰ R ਨਹੀਂ ਪਤਾ, I ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ V ਔਰ R ਦੋਨੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ R ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, R ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ V ਵੀ ਪਤਾ ਔਰ I ਵੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਓਮਸ ਲਾਅ V ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ IR ਦੇ, ਇੱਥੋਂ R ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, I ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ V ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ I। ਸੋ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 60, I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 4। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸੋ 2 1 2 2 15 30, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 15 ਓਮ। ਬੱਚੇ ਯੂਨਿਟਸ ਪਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਹਾਫ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨਿਟਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਓ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ 15 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ V ਪਤਾ, I ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, R ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, R ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ 15 ਓਮ।
क्लियर हो गया बच्चे। सो फॉर्मूला ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 120 ਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 15। ठीक है, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ, 3 4s ਆ 12, 3 5s ਆ 15, 5 1s ਆ 5, 5 8s ਆ 40। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ I ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਅੰਪੀਅਰ। ਕਰੰਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਪੀਅਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ। ਡਨ ਬੱਚੇ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਥਰਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਆਫ ਲੈਂਥ 1 ਮੀਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਦ ਵਾਇਰ, ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ L इज इक्वल्स टू 1 मीटर। बच्चे जो जो चीज़ वो बोल रहे हैं उदा उदा, जो जो तुसी पढ़ रहे हैं उदा उदा लिखते जाओ। इस 26 ओम, ओम तो पता लग रही है कि रेजिस्टेंस की है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर मतलब R गिवन है, R कितनी गिवन है 26 ओम एट 20 डिग्री सैल्सीयस। बच्चे टैंपरेचर का रेजिस्टेंस वाले ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ हले तक कोई काम नहीं आ, सो इनू स्किप कर दो। इफ द डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.3, ਇਹਦਾ मतलब डायामीटर गिवन आ, सो सब तो पहला लिख लो डायामीटर ऑफ वायर। बच्चे डायामीटर गिवन आ, ਇਹਦਾ मतलब D गिवन आ, सो D की वैल्यू कितनी आएगी 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, सो सानू की आ 0.3 मिलीमीटर आ बच्चे, सानू मीटर रेडियस चाहिए होंदा ना कि डायामीटर। सो ਇਹਦਾ मतलब R कितना होएगा D डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज 0.3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया? ਇਹਦਾ मतलब साडे को आ गया 0.515 मीटर, 0.15। ਇਹਨੂੰ 15 नहीं बोलते बच्चे, डेसीमल तो बाद वाले ਜਿਹੜੇ पॉइंट्स ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ पॉइंट ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ 0.15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 10⁻⁻2 मीटर ਦੇ ਨਾਲ, सॉरी 3 मीटर ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, -3 मीटर ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ। डिवाइड मतलब आ 3 टर्म्स उपर लै जाओ। सो 3 जीरोज उपर लैके गए तो कितनियां जीरो हो गई 3 जीरोज। जो नीचे उपर टर्म लैके जाने तो माइनस दी हो जाती है, इस करके माइनस से 3। बच्चे क्लीयर हो गया कि 10⁻³ ना मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1000 नाल डिवाइड करीदा आ। क्लीयर हो गया बच्चे, इत्थे तक अगे आ। वट विल बी द रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी मतलब तुसी की पता करना, रो। ध्यान रखो बच्चे, जो भी रजिस्टेंस पता करने लिए क्या हो गया होवे तो मतलब तुसी R पता करना, जो भी रजिस्टिविटी फाइंड आउट करने लिए क्या होवे तो मतलब रो पता करनी है। सो दिस इज रो। इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से ही कन्फ्यूज रहते हैं कि रजिस्टिविटी पता करने को क्या कि रजिस्टेंस, रजिस्टेंस मतलब R, रजिस्टिविटी मतलब रो। सो असी रो पता करनी आ। सो बच्चे R का फॉर्मूला हमेशा याद रखो, R इज इक्वल टू रो L/A। पर उन्होंने की पता करने को क्या आ, रो। ਇਹਦਾ मतलब रो इधर पे ही रहने दो, रो का फॉर्मूला कितना आ जाऊगा RA डिवाइडेड बाय L। सो ऑलवेज बच्चे कहते मैम इन्ने बड़े फॉर्मूले याद नहीं होंगे। बच्चे एक ही फॉर्मूला याद रखो, R इज इक्वल टू रो L/A। इतों जो भी उन्होंने पता करने को क्या वो असी कढ़ सकते हैं। ठीक है, रो पता करने को क्या दूसरी टर्म दूसरे पासे ले जाओ। सो ਇਹਦਾ मतलब असी की पता करना, रो RA डिवाइडेड बाय L। क्लीयर हो गया? सो रो पता किस तरीके ना करांगे। हुण बच्चे देखो R की वैल्यू, हुण देखो इत्थे किते भी सानू एरिया नहीं गिवन। सो एरिया की जगह ते असी की लिखण लगे हां बच्चे, जिहड़ी तार हुंदी आ इस तरह की लंबी सारी तार हुंदी आ। ठीक है, किदां आ इहदा पोर्शन की है जिद्दां सर्कल हुंदा आ। सो एरिया की जगह ते की आ जाऊगा πr²। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼। ਸੋ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ πr²। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ r ਵੀ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ R ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਮਾਲ l ਵੀ ਆ। R ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਕੈਪੀਟਲ R ਕੀ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਲ r ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, रेडियस। सो दोनों च डिफरेंस आ बच्चे, ध्यान रखियो। ठीक है, कैपिटल R किन्नी गिवन आ 26। सो असी पुट कर दिता 26। ठीक है, पाई की वैल्यू बच्चे असी की पुट करन लगे हां 3.14। रेडियस, रेडियस असी हुणे हुणे सॉल्व करके हटे सी
0.15 इंटू 10⁻³ क्योंकि इतने होल स्केयर आ तो असी होल स्केयर पाता डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी आ 1 मीटर सो आ गया 1 मीटर। सो इनू सॉल्व करो 26 मल्टीप्लाई बाय 3.14 0.15 मल्टीप्लाई 0.15 दो बार क्यों लिखा क्योंकि इतने स्केयर आ ठीक है। जो बच्चे पावर नू सॉल्व करना 3 2 6 माइनस से 6 सो सारी की सारी टर्म ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 26 ਨੂੰ 3.14 ਦੇ ਨਾਲ then 0.15 ਦੇ ਨਾਲ then again 0.15 ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ 1.84 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ 10⁻⁻6 ओम मीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ठीक है। उन्होंने सानू की पता करन लई किया सी रो मतलब रेजिस्टिविटी पता करन लई किया सी। सो दिस इज द आंसर। अगेन बच्चे याद रखियो यूनिट्स पाना ना भुलना जे यूनिट्स पाना भुल जाने तो हाफ मार्क्स कटिया जाता। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अ 4 ओम रेजिस्टेंस ਇਹਦਾ मतलब रेजिस्टेंस गिवन है। सो ਅਸੀਂ सब तो पहला लिख लिया R इज इक्वल टू 4 ओम वायर इज डबल ऑन इट। मान लो बच्चे साडे को पहला वायर जिहड़ी इस तरीके दी सी ठीक है इस तरीके की लेंथ आ सो वायर आ और इसकी लेंथ कितनी आ L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ A। सो सानू R गिवन आ कि 4 ओम आ। हुण फर्स्ट लाइन के अंदर ही उन्होंने लिखा कि वायर इज डबल्ड ਇਹਦਾ मतलब सी इस तार नू फोल्ड करके डबल कर दिता ठीक है। सो मान लो असी इस तार नू अद्धा कट लिया। सो इनू समझण दा बेस्ट वे की आ अद्धा कट लिया एक तार असी इत्थे रख ली एक तार इहदे बिल्कुल उपर रख दी डबल इस तरीके नाल ही करांगे ठीक है। देख लो ध्यान नाल अद्धी आ। सो लेंथ कितनी होगी ओरिजिनल दे नालों हाफ ਇਹਦਾ मतलब लेंथ कितनी होगी हाफ बट एरिया ध्यान ना देखो बच्चे एरिया कितना हो गया डबल दुगना हो गया। सो एरिया कितना हो गया डबल। क्लियर होगी बच्चे आ चीज़। सो हुण देखो इत्थे रेजिस्टेंस कितनी होएगी R डैश कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस मतलब असी R डैश पता करनी है। क्लियर होगी बच्चे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हाँ अदरवाइज तुसी डायग्राम फेयर कॉपी के उत्ते या फिर अपनी एग्जाम दे विच बना के नहीं आनी जस्ट फॉर नॉलेज आ तुहानू समझाने के लिए ये चीज़ की गई है। इसका मतलब R तुहानू कितना गिवन आ 4 L की जगह ते की लिखोगे L और A की जगह ते की लिखोगे A। आ स्टैप नंबर 1 है। इसका मतलब थोड़ी R कितनी होएगी R इज इक्वल टू रो L ओवर A। हुण बच्चे सैकेंड स्टैप देखो सैकेंड स्टैप दे विच उन्होंने की किया जदों उन्होंने वायर नू डबल कर दिता ठीक है। R डैश असी पता करनी है न्यू रेजिस्टेंस असी पता करनी है लेंथ हुण कितनी आ L डैश कितनी होगी बच्चे थोड़ी हाफ दा मतलब L डिवाइडेड बाय 2। सो A डैश हुण कितनी आ थोड़ी डबल सो असी लिख दिता 2A। क्लियर होगी बच्चे इत्थे तक सारी चीज़ क्लियर आ। सो असी फॉर्मूला लगान लगे हाँ। सो फॉर्मूला की लगेगा R डैश इज इक्वल टू रो L डैश डिवाइडेड बाय A डैश ठीक है। सो R डैश असी पता करनी है R डैश नू R डैश लिखा रहन दो रो की वैल्यू बच्चे सानू नहीं पता सी रो की जगह ते रो लिखा रहन दिता L की जगह ते की आएगा L डैश की जगह ते की आएगा L ओवर 2। सो असी पुट कर दिता L ओवर 2 मल्टीप्लाई। सो बच्चे आ वाली A डैश की जगह ते की आएगा 2A। सो असी इत्थे पुट कर दिता 2A। हुण ध्यान नाल देखो 2 2 4 सो 1 ओवर 4 रो L ओवर A। हुण ध्यान नाल देखो वट इज रो L ओवर A दैट इज R ठीक है। रो L ओवर A की जगह ते असी की लिख सकते हैं R की असी लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल टू 1 ओवर 4 की जगह ते बच्चे 1 ओवर 4 लिख दो रो L ओवर A की जगह ते असी की लिखन लगे हैं R लिख दिता R। नाउ वट इज द वैल्यू ऑफ R बच्चे R की वैल्यू कितनी आ 4 सानू गिवन आ 4 दे नाल 4 कट्टिया गया मतलब R डैश का आंसर कितना आ गया 1 ओम। इसका मतलब न्यू रेजिस्टेंस तुहाडी कितनी आ गई 1 ओम की। क्लियर हो गया बच्चे न्यूमैरिकल। सो साडा नैक्सट न्यूमैरिकल देखो बच्चे अगर तुहानू न्यूमैरिकल अच्छी तरीके ना समझ आ गई हुण टाइम आ गया कि तुसी अपनी वीडियो पॉज करो और न्यूमैरिकल खुद पढ़ो और खुद ट्राई करो। अगर तुहानू नहीं समझ लगेगा तो वीडियो ऑन कर लेना
ठीक है, तो देख लेना। अगर तुसी हिंट लेना चाहते हो तो हिंट लैके कर लो। सो ट्राई करो बच्चे, न्यूमैरिकल्स खुद करो। जिन्ना ज़्यादा न्यूमैरिकल तुसी खुद करोगे उन्ने ज़्यादा न्यूमैरिकल तुहानूं ज़्यादा समझ आउणगे। चलो आपां स्टार्ट करते हैं। नैक्सट न्यूमैरिकल, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। सब तो पहला बच्चे जो चीज़ उन्होंने कही है उदा उदा लिखते जाओ। सो सोल्यूशन के अंदर की लिखांगे असी, सब तो पहला सानू की चीज़ गिवन है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब आर गिवन आ, ठीक है। सो कितनी गिवन है, 20 ओम। असी लिख दी 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इनक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। सो दी लेंथ जी इनक्रीज होगी। मान लो ओरिजिनल लेंथ कितनी है, इत्थे लिख लो ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी सी, एल, ठीक है। सो थोड़ा जिहा खुला करके लिख लैंने आ। सो ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल। ਇਹਦਾ मतलब तुसी तार नूं इस हिसाब नाल खिंचिया कि वो इनक्रीज होके डबल हो गया। जे डबल हो गया ਇਹਦਾ मतलब एल डैश कितना हो गया, दुगना, डबल हो गया। सो लिख दिता 2L। आ चीज़ बच्चे क्लियर होगी, ठीक है। आगे पढ़ो, अगे अपना न्यूमैरिकल पढ़ो। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन अ न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਲੈਂਥ ਦੁੱਗਣੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। क्लीयर होगी आ चीज़ का बच्चे ध्यान रखना। जे लेंथ बच्चे दुगनी घट जाती तो एरिया वध जाना सी। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। हुण इस न्यूमैरिकल के अंदर उन्होंने की क्या आ, लेंथ वध गई, ट्वाइस हो गई इनक्रीज। ਇਹਦਾ मतलब एरिया की हो जाएगा, घट जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब एरिया सानू पता है, एरिया कितना हो जाएगा, A डिवाइडेड बाय 2। क्लीयर होगी। अदरवाइज साडा रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होंदी है बच्चे, रो L ओवर ए। सो ਇਹਦਾ मतलब आ साडी फर्स्ट इक्वेशन आ, सानू पता है रो की वैल्यू होंदी आ आर की वैल्यू होंदी आ रो L ओवर ए। हुण देखो सैकेंड स्टैप के अकॉर्डिंगली आर डैश का आंसर कितना होएगा, रो L डैश डिवाइडेड बाय ए डैश। आही होएगा। रो की जगह ते रो लिखिया रहन दो, L की जगह ते बच्चे की आएगा 2L। सो असीं इत्थे पुट कर दिता 2L। ए डैश की जगह ते की आएगा, A डिवाइडेड बाय 2। बच्चे डिवाइडेड बाय 2 नूं उपर लै गए तो मल्टीप्लाई च ही रहेगा। सो वाले 2 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 रो L ओवर A। हुण ध्यान नाल देखो बच्चे, रो L ओवर A की चीज़ आ, R। सो असीं लिखांगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो असीं इत्थे ही लिख लैंदे आ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो R डैश का आंसर कितना आ जाएगा, 4 रो L ओवर ए की जगह ते असीं की लिखण लगे आर। सो असीं लिख दिता आर, ठीक है। नाउ वट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, आर कितना गिवन आ 20। सो असीं पुट कर दिता 20। 4 2 ज़ा 8, इट मीनस 80 ओम तुहाडा आंसर आ गया आर डैश। सो दिस इज़ द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्लीयर हो गया बच्चे न्यूमैरिकल। चलो बच्चे आपां नैक्सट न्यूमैरिकल करते हैं, 6 न्यूमैरिकल। सो ये थोड़ा जिहा लेंथी आ, ध्यान ना समझना। इत्थे तक तो बच्चे तुहानूं बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ वाली चीज़ मेरी वीडियो की हैल्प ले लेना तुसी। अदरवाइज ट्राई करो कि फर्स्ट पार्ट जिहड़ा खुद करन दी कोशिश करो, ठीक है। खुद करोगे तो तुहानूं अच्छे तरीके नाल प्रैक्टिस होएगी, अच्छे तरीके नाल समझ लगणगे। कॉपर वायर ऑफ डायामीटर। हुण ध्यान नाल देखो बच्चे, जे डायामीटर गिवन आ, सब तो पहला सोल्यूशन दे विच असीं की लिखना है, स्मॉल डी। स्मॉल डी तुहानूं कितना 0.5 मिलीमीटर। सब तो पहला बच्चे मिलीमीटर नूं मीटर च कन्वर्ट करांगे तो की होगा, 10⁻³ मीटर, ठीक है। एक मीटर मिलीमीटर नूं, मिली नूं बच्चे कन्वर्ट करन लई की हुंदा है, 1000 दे नाल डिवाइड करना हुंदा। जदों आ 3 जीरोज़ असीं इहनूं लिख सकते 3 जीरोज़ इस तरह आ, जदों उपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। क्लीयर हो गया। सो इदां करके असीं इहनूं 3 जीरोज़ दे विच लिख दिता। सो उपर गई टर्म माइनस दे विच आ गई। सो तुहाडा डी सी। बच्चे हुण पूरे न्यूमैरिकल दे विच सानूं डी की जरूरत नहीं हुंदी, सानूं रेडियस की जरूरत हुंदी है। सो असीं रेडियस सॉल्व करना। सब तो पहला तो बच्चे आ पॉइंट ही हटा दो, कि आएगा 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। सो आ वाला 10 जो ऊपर जाएगा की हो जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है। सो इत्थे की आ जाएगा -4, क्योंकि नीचे वाला 10 भी ऊपर चला गया। सो इत्थे आ गया -4। आ डी की वैल्यू आ गई तुहाडे कोल। सानूं डी नहीं चाहिए, सानूं आर चाहिए। आर किहदे इक्वल हुंदा, डी डिवाइडेड बाय 2 दे।
सो दिस इज 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर। ਇਹਦਾ मतलब आर का आंसर कितना आ गया 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर। क्लीयर हो गया बच्चे? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आर आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं एंड रजिस्टिविटी। बच्चे ਹੁਣ रजिस्टिविटी ਆ, रजिस्टिविटी ਹੁੰਦੀ ਆ रो, ठीक है। रजिस्टेंस कैपिटल आर होंगी है, रजिस्टिविटी रो होंगी है। सो असी रो की वैल्यू लिख रहे हैं, रो सानू गिवन आ 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 ओम मीटर। बाई चांस थानू पेपर च कन्फ्यूजन हो जाए भी ये रजिस्टेंस आ कि रजिस्टिविटी आ, रो आ कि आर आ, तो बच्चे यूनिट्स चैक कर लेने। रजिस्टेंस के जोड़े यूनिट्स होंगे वो ओम होंगे, जोड़े रजिस्टिविटी के यूनिट्स होंगे वो ओम मीटर होंगे। सो यूनिट्स तो पहचान लिया करो भी आर गिवन आ कि रो गिवन आ, ठीक है जी। what will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm। ਇਹਦਾ मतलब कहते what will be the length कितनी होगी, मतलब L पता करन नु क्या, जद कि कैपिटल R ਦੀ वैल्यू उन्होंने कितनी कही है 10 ohm, ठीक है। सो L सानू पता करन ਲਈ किया। क्लीयर हो गया बच्चे? आ चीज़ां सानू गिवन सी। सो गिवन तो बाद हुण आपां इहदा सोल्यूशन निकालते हैं। सब तो पहले तो असीं L पता करनी आ। सो फॉर्मूला की आ, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ठीक है जी। पता की करना असी एल। सो एल नू एक पासे पिया रहन दो, एल नू इसे पासे पिया रहन दो, आर उधर ले जो आ गया आर ए डिवाइडेड बाय रू दूसरी पासे चला गया तो आ गया इस तरीके ना, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब असी एल नू किस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ लिख सकते हैं आर। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो बच्चे, किते भी ए नहीं सानू गिवन, आ किसी भी टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ सानू ए नहीं गिवन। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ एरिया, एरिया किहदे इक्वल ਹੁੰਦਾ पाई आर स्केयर ਦੇ इक्वल, ठीक है। सो देख लो आर सानू गिवन, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय रो, रो की जगह ते रो लिखा रहन ता। हुण आपां इहनूं सॉल्व करना शुरू करन लगे, एल की जगह ते एल लिखा रहन दो। आर की वैल्यू की है बच्चे तुहाडे कोल, कैपिटल आर कितना गिवन आ 10, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी आ 3.14, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ 2.5, क्योंकि बच्चे स्केयर आ तो दो बारी लिखांगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 दा होल स्केयर। बच्चे इत्थे भी 2 दा होल स्केयर आना सी, सो होल स्केयर दी बजाय मैं दो बारी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 लिखता, ठीक है। 10 रेज टू दी पावर -4 दा होल स्केयर डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू कितनी गिवन आ तुहाडे को 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8। बच्चे हुण नैक्सट स्टैप दे विच मैं तो इत्थे रब करके करन लगी हाँ, तुसीं अपनी कॉपी दे विच ध्यान नाल देखना 4 2s आ 8, ਇਹਦਾ मतलब -8 आ जाएगा। सो ਇਹਦੀ पावर मैं तो इत्थे रब करके लिखन लगी हाँ, तुसीं अपनी कॉपी दे विच नैक्सट स्टैप दे विच लिखना है -8। हुण ध्यान दिओ बच्चे, नीचे भी एक -8 आ, ऊपर भी -8 आ, सो दोनों आपस विच कैंसल आउट हो गए। क्लीयर हो गया? सो हुण बच्चे मल्टीप्लाई करो 10 नूं 3.14 ना, दैन 2.5 ਦੇ ਨਾਲ, दैन 2.5 ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਗੈਟ 196.25 डिवाइडेड बाय 1.6, ठीक है। जो अगेन इनू डिवाइड करोगे वी गेट 122.656 अप टू सो ऑन इन्ने मीटर। जो बच्चे इनू राउंड ऑफ करोगे 5 ने इनू एक कैरी दे दिता तो साडे को आ गया 122.7 मीटर। सो ये थोड़ा लेंथ का आंसर आ गया। क्लीयर हो गया? इत्थे तक बच्चे तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने आप करना आना चाहिए है, जिन्नी आपां न्यूमैरिकल्स दी हुण तक प्रैक्टिस कर ली। हुण अगला पार्ट देखो, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल। अगर असी डायामीटर नू डबल कर दिए हुण की होएगा। सो सैकेंड पार्ट करन लगे आ वैन डायामीटर इज डबल्ड। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डायामीटर नू डबल करता, ਇਹਦਾ मतलब डी डैश नू ਅਸੀਂ की कीता 2D लिख दिता, ठीक है, डबल कर दिता। अगर बच्चे डायामीटर डबल हो रहा इट मीनस कि रेडियस भी डबल हो जाएगा थोड़ा, ठीक है जी। हुण ਇਹਦਾ मतलब न्यू एरिया कितना होएगा, न्यू एरिया पुराना एरिया बच्चे कितना सी साडा पाई आर स्केयर आही सी। ਇਹਦਾ मतलब न्यू एरिया कितना होएगा, ए डैश कितना होएगा, पाई की जगह ते पाई लिखा रहन दो, एरिया आर डैश, आर की जगह ते असी की लिखन लगे बच्चे आर डैश का होल स्केयर, ठीक है। हुण ध्यान दिओ आर डैश की वैल्यू कितनी आ 2r। सो ਇਹਦਾ मतलब असी पुट कर सकते हैं पाई 2r का होल स्केयर, ठीक है। सो पाई 2 2 जा 4, आर स्केयर नू करांगे तो इदां आ जाएगा 4 पाई आर स्केयर,
ठीक है जी। हुण ध्यान दिओ बच्चे, हुणे हुणे असीं लिख के हटे हाँ पुराना एरिया कितना सी पाई आर स्केयर। ठीक है, इहदा मतलब पाई आर स्केयर की आ तुहाडा पुराना एरिया। इहदा मतलब ए डैश का आंसर कितना आ गया 4A। आ वाली जगह ते असीं की लिख दिता A। सो इत्थों पता लग गया साडा जिहड़ा एरिया आ पुराने एरिया नालों पुराना एरिया 4 टाइम्स आ। ठीक है, 4A आ। ठीक है, हुण असीं पता की करना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब असीं लिखण लगे हाँ न्यू रेजिस्टेंस। बच्चे इस पार्ट नूं सॉल्व करन दे बहुत सारे तरीके आ, ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं तुसीं मेरा ही तरीका अपनाना आ। जे तुहानूं किसी होर तरीके नाल ईजी लगदा तां तुसीं उस तरीके नाल भी कर सकदे आ। न्यू रेजिस्टेंस कितनी आएगी रो L डैश डिवाइडेड बाय A डैश। ठीक है, सो रो की जगह ते बच्चे असीं की लिख रहे हैं रो, L डैश की जगह ते ओरिजिनल लेंथ L, A की जगह ते असीं A डैश की जगह ते की लिख रहे हैं 4A। सो आपां इहनूं लिख सकदे 1/4 रो L ओवर A। बच्चे हुण रो L ओवर A की आ पुरानी रेजिस्टेंस। ठीक है, सो असीं लिख सकते हैं 1/4 R। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब R डैश का आंसर कितना आ गया 1/4 R, मतलब कि 1/4 टाइम्स आ। सो लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਇਫ ਦ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਦ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਡਬਲ, ਅਗਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿਲ ਬਿਕਮ 1/4 टाइम्स। ठीक है, सो 1/4 टाइम जी वो रेजिस्टेंस हो जाएगी। चलो बच्चे आपां अज दा लास्ट क्वेश्चन करन जा रहे हैं, लास्ट नुमैरिकल करन जा रहे हैं। सो बी ऑनेस्ट, वीडियो नू पॉज करो और ये नुमैरिकल खुद करन की कोशिश करो। बच्चे अगर ये नुमैरिकल तुसी खुद नहीं कर पा रहे, इसका मतलब इस तो बाद भी तुहानू होर प्रैक्टिस की ज़रूरत है और तुहानू होर नुमैरिकल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत है, तां जो तुसी इस नुमैरिकल्स नू होर ज़्यादा वधिया तरीके नाल समझ पाओ। ट्राई करो कि तुसी 7th नुमैरिकल खुद करो। अगर तुसी 7th नुमैरिकल पॉज करके खुद कीता है तो मैनू मैसेज करके ज़रूर दस्सिओ कि मैम मैं 7th नुमैरिकल पॉज करके खुद कीता है और मैनू खुशी होएगी अगर तुसी ये नुमैरिकल सॉल्व करन सक्सैसफुल होंदे आ। सो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। मान लो तुसी वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व किया है, एक बारी मेरी वीडियो के नाल आंसर जरूर चैक कर लेना कि तुहाडा आंसर सही आया कि नहीं सही आया। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सैक्शन। सो पहले नंबर पर उन्होंने क्या आया कि एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन मतलब कि असी ये पता करनी है ऑफ द वायर हुज लेंथ इज़ 1 मीटर। सो दी लेंथ कितनी आ 1.0 मीटर। बच्चे 1.0 मतलब 1 मीटर असी लिख सकते हैं। ऑफ रेजिस्टेंस 23। सो आर सानू गिवन आ 23 ओम। टेक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल ऑफ द वायर इज 1.84 इंटू 10⁻⁻6। मान लो थानू स्पैसिफिक रेजिस्टेंस नहीं पता लग्या कि स्पैसिफिक रेजिस्टेंस की चीज़ गिवन आ, तो यूनिट्स चेक कर लो। ओम मीटर आ बच्चे, ओम मीटर मतलब थानू रो गिवन आ, रो कितना आ 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है जी, सो सानू आ चीज़ां गिवन है। सो असी मेन स्टार्ट करते हैं। आर की वैल्यू बच्चे की है रो L ओवर A। ठीक है, असी पता की करना है ए पता करना। इसका मतलब ए नू दूसरी तरफ लै जाओ, जो दूसरी तरफ लैके जाओगे तो साढ़े को की आ जाएगा रो L डिवाइडेड बाय R। नाउ पुट द वैल्यूज़। जो बच्चे रो की वैल्यू पुट करोगे 1.84 इंटू 10⁻⁻6। L की वैल्यू कितनी गिवन आ 1 मीटर डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी आ 23। ठीक है, सो इनू सॉल्व करके देखो बच्चे 1.84 नू 23 ना डिवाइड करके देखो तुहाडा कितना आंसर आ रहा है। सो आंसर इज 0.08 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, सो बच्चे असी अगर तुसी इत्थे तक भी छड्ड के आना चाहते छड्ड सकते हैं, अदरवाइज तुसी किया डिवाइडेड बाय 100 लिख के -6। हुण देखो आ वालियां जो जीरोज उपर लैके जाओगे तो की हो जाएगा, नीचे प्लस दे सी 0 उपर जाके माइनस दे 0। पहले -6 सी, 2 जीरोज होर ऐड हो गए तो किन्ने हो जाएंगे -8। ठीक है, सो एरिए दे बच्चे यूनिट्स की होंगे मीटर स्केयर। सो थोड़ा आंसर आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 मीटर स्केयर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। डन। सो बच्चे आज दी